Ladies and gentlemen, today I am in Ajmer and I am going to introduce to you firstly Mr. Piyush Kumar, who is Chairman All Saints Group of Institutions, a distinguished educationist with an illustrious career spanning nearly 4 decades. He holds a master's degree in English Literature, LLB and B.Ed. Mr. Kumar has continually pursued excellence, augmenting his expertise with courses from prestigious institutions like IIM Ahmedabad and IIT Delhi. His remarkable journey at All Saints School commenced at a juncture when the institution was a sapling with just 400 students and classes up to 8th standard. Under his visionary leadership, the school has undergone a transformative evolution, blossoming into a beacon of learning with a staggering strength of nearly 5,000 across 3 branches, offering CBSE and State Board curriculum both. A true motivator, Mr. Kumar possesses the rare gift of eloquence, making him an exemplary leader and an inspiring mentor. His dedication to education and management has earned him accolades from esteemed quarters. He, along with his ally, Mrs. Jaya Kumar, have been felicitated by the Education Minister, the Mayor of Ajmer, and many others for their outstanding contribution to the field of education. In this transformative journey, Mr. Kumar found an invaluable ally in Mrs. Jaya Kumar, as I mentioned, the school's dynamic principal since 1990. She is an MA and M.Ed. She has the reputation of being a strict administratrix, but she is also an empathetic individual for any concerns that the teachers or the students may have. Together, they and a team of close to 200 teachers and staff members have steered All Saints towards unprecedented heights, with Mrs. Kumar's exceptional administrative prowess complementing Mr. Kumar's visionary leadership. Mr. Kumar's humility, compassion and approachability make him not just a leader but also a humanitarian, fostering an environment where everyone's voice is heard and effective decisions are made. Join us in a conversation with Mr. Piyush Kumar and Mrs. Jaya Kumar, who are the beacons of inspiration in our Learning from Leaders series. And let us discover their success mantras behind this extraordinary leadership journey that they've had together. You would agree that India's educational realm is rapidly evolving, reflecting a rich tapestry of traditions and cutting-edge innovations. How have you managed to harmonize the country's cherished educational traditions with the demands of innovative approaches? From your experience, I want to understand what strategies have proven most effective in ensuring both academic excellence and holistic development of students. Namaskar. India has been undergoing a paradigm shift over the last 5 years in particular. And at school we had been doing focusing even earlier vis-a-vis the traditional methods, vis-a-vis making our students proud of their culture, tradition. We are from the land of Maharana Pratap and Prithviraj Chauhan, such proud heritage that we have had. So students, they have always been made aware of all these things. Besides, the Gurukul system to a certain extent has been in existence in the school over the last so many decades. We are undertaking the responsibility of the students as tiny toddlers when they walk into the school. छोटे-छोटे बच्चे लड़खड़ाते पाँव से जब स्कूल में आते हैं, वहाँ से लेकर और when they pass out of class 12, smart, upright, bright individuals, parents को खुद को यकीन नहीं होता है कि बच्चा कितना एक जिम्मेदार और स्मार्ट नौजवान या गर्वित विद्यार्थी बनके कोई बच्ची यहाँ से निकलती है. तो ये एक बड़ा एक सुखद अनुभव है इस लंबी यात्रा का कि आप इस दुनिया में आए तो कुछ आपने लेश मात्र ही सही इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया. और बच्चे जब यहाँ पढ़ के जाते हैं तो उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. देयर इज ट्रेमेंडस फोकस ऑन दैट. सो बिसाइड्स द एकेडमिक एक्सेलेंस, ऑफ कोर्स आई वुड बी हैप्पी टू शेयर विद यू ओवर द लास्ट so many years the board results have been outstanding, and we've been only the only institution perhaps in whole of Rajasthan which had 100% board result 10 years in succession. So having said that, then our students have been toppers
in 12th class boards, 10th class boards, in the top 0.01% bracket of CBSE results. सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स के अलावा मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि गत शैक्षणिक सत्र में ही 9 इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुए, उनमें से 7 अकेले ऑल सेंट्स के विद्यार्थी विजयी रहे। ये एक उपलब्धि का पैमाना है। को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सब चीजों के साथ साथ अतिरिक्त रूप से जो आधुनिक वर्षन कहें किसी चीज का, तो जैसे iMac एप्पल लैब्स आई, तो राजस्थान की पहली और पूरे देश की दूसरी iMac एप्पल लैब ऑल सेंट्स के पास है। ऑल सेंट्स के बच्चे दुनिया के कोने कोने में हैं। आप देखिए कि येल यूनिवर्सिटी में ऑल सेंटीज हैं, तो वॉरिक में भी हैं, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी हैं, तो सरे में भी हैं। और सिर्फ विदेशों की बात नहीं, भारत का कोई भी सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान आप देखें, चाहे एनडीए कहिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब जगह आपको ऑल सेंटीज मिलेंगे। ये एक संतोष का पैमाना है कि जो इतनी शानदार टीम है हमारे पास, और खुशनसीबी है मेरी कि मेरे पास हमारे साथ जो हमारी टीम है, तो मिसेस जया कुमार, सीनियर मोस्ट अमंग्स द सीनियर मोस्ट सीबीएसई प्रिंसिपल्स इन द कंट्री, इतने हाईली एक्सपीरियंस हेड आपके साथ है जो प्रशासनिक योग्यता में अद्वितीय हैं। इन एजुकेशनल पार्लेंस वी से, इफ द प्रिंसिपल रन्स द टीचर्स वॉक, इफ द प्रिंसिपल वॉक्स द टीचर्स सिट, if the principal sits the teachers go to sleep. So very fortunate to have a principal of this caliber alongside me, and we have been able to take the school to new heights. Wonderful. Besides, when it comes to the traditional part, we at school have focused on it's like a tradition of the Indian Army, you know. All the religions coexist. Students come from different walks of life. Consequently, all functions of different religions, be it Diwali, be it Eid, be it Christmas, be it Guru Gobind Singh Ji Jayanti, name it and we have it. So, during the course of upbringing, children have a very balanced outlook towards other religions, towards peaceful coexistence with other cities. Besides, when you see to the Spitmake part, we are an active member of it, and eminent personalities and artists like Tijan Bhai ji, Shriram Maharaj, Rama Vaidyanathan ji, Aishwarya Warrior ji, you know, top of the line international performers that India is so proud of. They have visited All Saints, they have demonstrated their wonderful performances, and also they have taught the basic intricate steps to the student. Not only this, we are also members of Pan India, INTEC, Pan India members of it. And our students have been actively participating. Now this basically talks of Indian culture, rich heritage, and their knowledge of it, and they have been repeatedly winning a number of prizes at the national level, at the state level, district level, and of course winning the inter-school quizzes of organized by INTEC and all. They are all part of this journey. So it's basically a holistic learning. The student has to be an all-rounder at practically everything. देखिए, जीवन एक महासंग्राम है। आप 12th क्लास करके यहाँ से निकलते हैं तो पूरे आपको एक समझिए कि सामने बाहर एक विश्व युद्ध के लिए आपको तैयारी करनी है, जहां पूरी दुनिया से आपको कम्पीट करना है। और आप यहाँ से अपने तर्कश में इतने तीर लेकर जाएं, इतनी विधाएं, आप बिल्कुल आरूढ़ हों, इतनी विधाओं से आप सुसज्जित हों कि आप जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो एक शानदार परफॉर्मेंस दे सकें कि आप उस महाभारत के कर्ण भी आप हैं, अर्जुन भी आप हैं, भीम भी आप हैं, तो युधिष्ठिर भी आप हैं। तो सारी इतनी सारी विधाओं से लैस आप जाएं बाहर की दुनिया में, कोई भी, यू शुड बी एबल टू रब शोल्डर्स विद द बेस्ट। वी हैव टीचर्स, 7 of them in the staff members that have undergone training at the IC3 world level certification for career counseling, so that students of classes 9 to 12, they actually know the varied options available before them. It's not about only being a doctor, an engineer or an IIT. We have scores of them passing out of All Saints every year. वो तो बनते ही हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन उसके अलावा इतनी सारे फील्ड्स खुले हुए हैं हर क्षेत्र में, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। अब वो स्ट्रीम्स नहीं रही, लिबरल एजुकेशन है। आप मैथ्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। तो ये इतनी वास्ट चॉइसेस हैं बच्चों के पास जो कभी नहीं थी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक कमाल है जो यहाँ पर लागू हो चुका है। बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई कि ऑल सेंस में हम सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस या को करिकुलर पे ध्यान नहीं देते हैं, हम यहाँ पे
मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए भी इतने एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि कल जब दुनिया भर के प्रेशर्स स्टूडेंट्स झेलेंगे तो वो बहुत वेल इक्विप्ड है, वेल प्रिपेयर्ड हैं आपके स्टूडेंट्स। हमारा फोकस है पूर्ण रूप से, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका शानदार है, आपके पास फुटसल टर्फ है जो दुनिया में कहीं भी सर्वश्रेष्ठ है, वो ऑल सेंट्स के पास है। ऑल सेंट्स एकमात्र स्कूल है जिसके पास लगभग 32 खेल कूदों की सुविधा है। ग्रेट। एंड आप बच्चों को आईमैक एप्पल लैब दे रहे हैं। फिर इंटरनेशनल एमयूएन की जो हमारे पास है, देखिए मुझे बड़ा फख्र है आपसे साझा करते हुए कि इंटरनेशनल एमयूएन ऑल सेंट्स का पूरे भारत में नंबर 2 पे है और प्रत्येक वर्ष 500 से 700 विद्यार्थी भाग लेते हैं। विदेशों से बच्चे आते हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, अफ्रीकन नेशन से आते हैं पार्टिसिपेट करने। प्राइज मनी भी पर्याप्त होती है, लेकिन जिन पे समसामयिक इश्यूज जो करंट इश्यूज होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, उसको हमने पिछले एमयूएन में लिया था और ये तो अभी खैर हाल का है हमास वाला। ये तो इसके अतिरिक्त फूड क्राइसिस है दुनिया में, मानवीय दृष्टिकोण है, ह्यूमन राइट्स हैं और इतिहास का भी उसमें मंथन और चर्चा होती है। जैसे इंडो पाक कन्फ्लिक्ट्स हुए, इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट्स हुए, इन सब के बारे में बच्चे जब तैयारी करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, आप देखिए कि उनकी विद्वता को देखकर आपका जी करता है उनको सैल्यूट करने का। इतनी तैयारी से आते हैं बच्चे। तो ये ग्रूमिंग जब आपके स्कूल के बच्चों की नीचे से ऊपर तक हो रही है, आप सोचिए आने वाले कल के लिए कितने बेहतरीन सिटीजन्स और टॉर्च बियरर्स देश के लिए तैयार हो रहे हैं। निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, आने वाले भारत के नागरिक अभी वालों से भी और 2 कदम आगे होंगे। According to a study by the Harvard Graduate School of Education, real-world anecdotes are incredibly valuable as they offer practical lessons and inspire adaptability. We all love listening to stories, right? Now, during my training sessions with your teachers at All Saints, I gathered from them that you continuously motivate them in the morning assembly and in the meetings alike. Can you tell us a significant incident from your life and what learning you derive from it? एनेक्डोट या चैलेंज की बात करें तो मेरे ख्याल से लास्ट 40 years देयर हैव बीन मैनी इंसिडेंट्स, उतार चढ़ाव की बहुत सारी घाटियां आई, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है इन 40 वर्षों के दौरान मैंने फेस किया वो था कि कोविड का पैंडेमिक। एंड पूरी दुनिया बिल्कुल उथल पुथल में थी, लोगों की जान सुरक्षित नहीं थी, आदि आदि बहुत सी चीजें थी। ऐसे में हमारे सामने ये दिक्कत आई कि पेरेंट्स का भी बिजनेस सबका लगभग बंद था, पूरी दुनिया लगभग बंद थी, तो पेरेंट्स स्कूल की फीस कहां से पे करते और बड़ी डिफिकल्ट फेज था वो। तो जब कोविड के बाद वापस से स्कूल खुला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 85% देना है आदि, ये सब चीजें तो कानूनी तौर पर हुई, लेकिन उसके बावजूद पता था कि पेरेंट्स बड़ी संघर्ष की स्थिति में है। तो हमें ऐसे में एम्पैथाइज करके पेरेंट्स के साथ चल के कि जब सामान्य समय था तो वो पेरेंट्स हमारे साथ थे, लेकिन अब उनके लिए भी दुष्कर समय है। इट वॉज अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर देम एज वेल एज फॉर अस। सो व्हाइल वी केप्ट द बॉल रोलिंग कि टीचर्स को भी हमें सपोर्ट करना था, हमारा स्टाफ भी ना बिखरे, तो उनको भी एक सर्टेन मिनिमम लेवल पे हम लोगों ने सपोर्ट किया उस 1.5 वर्ष के काले अध्याय के दौरान। और जब स्कूल खुला तो बहुत से पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा देखिए ऐसा नहीं कि हम फीस देना नहीं चाहते, पर हम बहुत मुश्किल स्थिति से निकल रहे हैं, तो आप हमें कंसीडर कीजिए। और हमने उन पर बहुत सहृदयता से हमने उस चीज को कंसीडर किया और मेरे को आपसे साझा करते बड़ी प्रसन्नता है कि बड़े मानवीय दृष्टिकोण से हमने 487 के करीब विद्यार्थियों की फीस में तो कंसेशन किए, बड़े अलग अलग 10, 20, 40, 50% तक। और 14 स्टूडेंट्स ऐसे थे दुर्भाग्यवश जिनके परिवार के जो मुखिया थे उनका देवलोक गमन हो गया कोविड के समय में, वो कोविड में रहे नहीं। तो हमने अगले 2 वर्ष के लिए उनकी फीस पूर्ण रूप से माफ की, क्योंकि उस परिवार को हमें संबल देना था कि उन्हें वापस खड़े होने के लिए समय चाहिए। हमारे स्कूल के तो पेरेंट्स हैं, हमारे साथ हैं, हमारी टीम है, पेरेंट्स भी तो उस टीम का अविभाज्य हिस्सा हैं। तो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल है, ये सब मिला के एक समग्र होल है, एक कंप्लीट होल है कि सब मिला के एक पूरा पूर्णता आती है इस संस्था में, और इस सब का केंद्र बिंदु वो बच्चा है। Research by the National Association of School Psychologists highlights the importance of mentorship and guidance. As an educational leader,
whose insight can offer practical guidance to both parents and students. What is your advice to parents who often strive to provide the best education for their children? Additionally, what message would you give to students who are gearing up to be global citizens? As far as the parents are concerned, I would like to tell them, parents often complain, later in life that children do not have time for them. What I would like to say is, until such time as they are in class 12, nursery to 12th एक वो दौर है पेरेंट्स के पास जब आप अधिक से अधिक समय बच्चों के साथ गुजारें. स्पेयर टाइम फॉर देम. हाँ, आप व्यस्त हैं, आपका व्यवसाय है, आपकी जॉब है, सब प्रायोरिटीज अपनी जगह पर हैं, पर आप बच्चों को दुनिया में लाए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है. उनका इमोशनल वेलबींग, उनका मेंटल वेलबींग, उनकी जेलिंग, उनकी बॉन्डिंग, आपसे स्नेह का उनका जो रिश्ता है, वो यही सर्वश्रेष्ठ समय है जब तक बच्चा 12th क्लास में नहीं आता है. 12th क्लास में करने के बाद जब वो बच्चा निकलता है बाहर, कॉलेज में गया, बाहर किसी कॉलेज में चला गया, हायर डिग्रीज के लिए गया, उसके बाद जॉब के लिए गया, शादी ब्याह हुए, लाइफ का एक डिफरेंट चैप्टर है वो उसका. आप उस वक्त ये कंप्लेन करते हैं मेरे साथ ये समय स्पेंड नहीं करते, उस वक्त उसके पास बहुत कम समय होगा आपके साथ जेलिंग बॉन्डिंग के लिए. इसलिए मेक है वाइल द सनशाइन. सभी जब वक्त है उसका सर्वाधिक सदुपयोग करिए. बच्चों के साथ जो खुशी आज आप अनुभव कर सकते हैं वो बाद में नहीं कर पाएंगे. I remember, sir, आपने एक बार कहा था कि when I invest in children, I try to create experiences. और इसीलिए with your own children, I believe you've had very good memories of various vacations that you've been to, isn't it? Yeah, we've been. I mean, me and my wife, we always, even when they were little kids, we used to take them out, and even now, of course, they are in college, and one of them is married, and all that is there. But then they have wonderful childhood memories, and we also have beautiful bonding of the years gone. When it comes to my advice to the students, we teach them about the Pareto's principle or analysis, Alfredo Pareto. He said 80% of the target or the priority of your life can be achieved in the top 20%. Focus it. For as students, what is important? Academics. So the 20%, top 20% focus of their time should be on academics, because that would achieve 80% of the goal. Now remaining part like co-curricular, extracurricular, happiness, eventually later in life earning wealth, emotional balance, or everything else would fall in place, including social media and others, if that first 20% is taken care of. So that is important. जया मैम, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की अपनी स्टूडेंट लाइफ में कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो फीमेल टीचर्स होती है, और आपके स्कूल में भी 90% जो फैकल्टी है वो फीमेल ही है. तो आप बता पाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में फीमेल्स को इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है? नंबर 1, लेडी स्टाफ में, लेडी टीचर्स में बहुत पेशेंस होता है, काम होती हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल समझती हैं, बच्चों की नीड समझती हैं, बच्चों के बारे में वो मदरली होती हैं. अनमैरिड स्टाफ तो कम ही होता है, मैरिड टीचर्स ज़्यादा होती हैं. तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी में तो 100% लेडीज स्टाफ होता है. 11-12 में मैथ्स टीचर्स हो जाते हैं, फिजिक्स टीचर्स हो जाते हैं. 11-12 में थोड़ा सा बच्चों का चेंज होता रहता है, लेकिन प्राइमरी तक लेडीज स्टाफ हर स्कूल में हर जगह आपको मिलेगा. प्री प्राइमरी में लेडीज स्टाफ आता है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो मैरिड स्टाफ है 40+ होना चाहिए, जो मैच्योर्ड हो, 40+ होना चाहिए, ताकि वो बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों को समझना, बच्चों की हर चीज समझना, बच्चा क्या चाहता है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो धीरे टीचर्स, लेडीज टीचर्स से बेटर होता है. ये तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि क्यों लेडी टीचर्स ज्यादा सक्सेस रहती है स्कूल्स में. ऑफ कोर्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में तो फिर जैसे जैसे परिपक्व होते जाते हैं स्टूडेंट्स, तो मेल टीचर्स भी हैंडल कर पाते हैं. सो थम्स अप टू ऑल द लेडी टीचर्स. थैंक यू सर एंड मैम for generously sharing your time and insights with us during Learning from Leaders series. Your expertise in the field of education is going to prove very valuable for other leaders, teachers, parents and students alike.